اے آسمان اور زمین کے رب مسیح یسوع میں ہمارے آسمانی باپ پیارے روح القدس، تو ہمیں باپ کے دل کی دھڑکن سنا، اور جو باتیں ہم آج سیکھیں وہ جتنی سینسٹیو ہیں خدا ان کو ہم اسی طرح لے سکیں اور یسوع مسیح کے نام میں غلبہ پا سکیں، اور یسوع مسیح کے نام کو جلال مل سکے، اور سارا جلال باپ بیٹے اور روح القدس کے نام کو جائے۔ میں اپنے آپ کو اور ساری کلیسیا کو، اس پلیس کو باپ تیری محافظت میں دیتا ہوں، اور اس گھر کے چگرد اور ساری کلیسیا کے چگرد تیرے پاک فرشتہ کی باڑ چاہتا ہوں۔ اس دعا کو تیرے عزیز بیٹے اپنے خدا یسوع المسیح کے وسیلہ سے مانگتا ہوں، سن اور بخش دے، آمین۔ اچھا جی، یہ جو معاملہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے کو ہوں، یہ خاصا حساس ہے، سینسٹیو ہے، لیکن کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ آپ جب ایماندار کہلاتے ہیں، آپ جب چرچ آتے ہیں، تو آپ کو ان باتوں کا پتہ بھی ہونا چاہیے۔ اگرچہ پر وقت ضرورت کسی کے ساتھ بات کرنی پڑے تو آپ کر بھی سکیں بائی ریفرنس۔ اگر آپ کو اس پر عمل کرنا پڑے تو آپ ابینگا ایماندار آپ کیسے عمل کریں گے، یہ ساری باتیں ہمارے سیکھنے کے لیے ہیں، اور ضرور ہم انہیں آج سیکھیں گے۔ آج سب سے پہلی بات ہم خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے لوکا 9 باب اس کی پہلی آیت کو ہم پڑھیں گے۔ جو پہلے نکالے سو وہ پڑھے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 9 باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں گے۔ جی پڑھیے جس نے نکالا ہے۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیں۔ اچھا، یسوع مسیح نے ان 12 کو بلا کر انہیں اختیار دیا کہ وہ بدروحوں کو نکالیں، بیماروں کو اچھا کریں، اور 12 کے علاوہ بھی بڑے لوگ تھے جو بدروحوں کو نکال رہے تھے، بیماروں کو اچھا کر رہے تھے۔ مسیح خداوند کے پاس یہ خبریں پہنچتی رہتی تھی اور وہ منع نہیں کرتے تھے، لیکن ایک مزے کی بات اس میں ہے کہ وہ بدروحوں کو نکالتے یسوع مسیح کے نام سے تھے۔ اس میں جو سب سے اوپر بات ہے، سب سے اوپر مضبوط بات جو ہے وہ اصل میں یہی ہے کہ یسوع مسیح کے نام سے ہی بدروح نکلے گی، یسوع مسیح کے نام سے ہی بیمار چنگا ہوگا۔ اور جب جب بھی آپ دیکھیں گے بائبل کے اندر مسیح یسوع کے نام سے ہی بدروح کو نکالا گیا، اور مسیح خداوند نے جن کو اختیار دیا وہ بھی نکال رہے تھے، اور جن کو اختیار نہیں دیا تھا انہیں پتہ چل گیا کہ اس نام سے نکلتی ہیں، وہ بھی نکال رہے تھے، اور وہ 70 بزرگ بھی جگہ جگہ جا کے مسیح کے نام سے ہی نکال رہے تھے، بیماروں کو چنگا کر رہے تھے، اور بدروح نکل بھی رہی تھی۔ کہیں کوئی کہہ لے کوئی آڑے بھی چیز آتی تھی تو وہ بتایا جاتا تھا، لیکن بہت سارے بیماروں کو وہ اچھا کرتے تھے۔ ہم اس آیت میں ہم نے اسی بات کو سیکھا جو لوکا 9 باب اس کی پہلی آیت ہے۔ پھر اس نے ان 12 کو بلا کر انہیں سب بدروحوں پر اختیار بخشا اور بیماریوں کو دور کرنے کی قدرت دی۔ لیکن جب میں نے یہ بات کہہ دی کہ سب سے اوپر، سب سے اتم بات یہی ہے کہ مسیح کے نام سے یہ چیزیں نکلیں گی، یہ جو ڈیمنز ہیں یہ مسیح کے نام سے ہی نکلیں۔ تو یہ جو ڈیمن یا بدروحیں ہیں، صرف ایک ہی ہے نام جس کا یہ حکم مان سکتی ہیں، وہ یسوع مسیح ہے۔ تو ایک بہت بڑے ڈیمونولوجسٹ ہوئے ہیں ایڈ وارن، انہوں نے دنیا کی سب سے بہترین کتاب ڈیمنز پر لکھی ہے۔ بہت بڑے خادم ہوئے، دونوں میاں بیوی، امریکہ کے اندر بہت بڑے خادم ہوئے۔
अमेज़न पे आपको उसकी वो किताब मिल सकती है। वैसे तो उनका बड़ा लंबा नाम है, 7 मिसेस भी हैं उनकी, वो भी खिदमत थी, तो उनकी एक बड़ी खिदमत है। तो हमारे यहाँ बदकिस्मती से अमेज़न से किताबें नहीं मिलती, इंडिया से अगर कोई लेता है तो उसे मिलती है, हमारे ऐसे रिवाज है नहीं मिलती, लेकिन फिर भी बहुत बड़े खादिम हैं। तो वो सबसे पहली बात जो कहते हैं ना वो खूबसूरत है, क्योंकि उन्होंने तजर्बे कर करके, दुआएं कर करके ये बातें लिखी और सिखाई। वो कहते हैं कि बदरूहों को निकालना ये अनाड़ियों की फील्ड नहीं है। बदरूहों को निकालना, जब मैं डीमंस कह रहा हूं तो बदरूह ही कह रहा हूं, बदरूहों को निकालना ये अनाड़ियों की फील्ड नहीं है। और सबसे पहली बात वो ये कहते हैं कि जो आदमी ये काम करता है, क्योंकि मसीह ने एक चीज हमें दी कि तुम मेरे नाम से बीमारों को चंगा करो, अच्छा करो, बदरूहों को निकालो। और ये भी स्टैंडर्ड एक जगह पे नहीं रहता, याद रखें। जब मसीह खुदावंद ने ये बात कह दी तो एक स्टैंडर्ड तो कायम कर दिया, लेकिन हर दफा आपके पास केस और नवीयत फर्क आएगी, ठीक है। अब वो कहते हैं, एडवॉर्न कहते हैं कि ये अनाड़ियों की फील्ड है ही नहीं। क्यों कहते हैं? यहां तो हमने पढ़ लिया कि एक और जगह पर भी लिखा है, दूसरी अनाजील में मसीह ने यही ऑर्डर दिया कि बदरूह को निकालो, सांप और बिच्छुओं का सर कुचलो, कोई हलाक करने वाली चीज खाओगे या कोई पिलाएगा तो जहर ना पहुंचेगा। सारी बातें सही है। मैंने पहले भी बताया कि सबसे ऊपर वाली बात मसीह है, मसीह के नाम से ही निकलेंगे। लेकिन मेरी बात जरा गौर से सुनिए, यहां भी सबसे पहली या ऊपर वाली बात तो मसीह ही है। लेकिन आप ये स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते कि हर दफा आपके पास एक ही तरह के केस आएंगे। तो एडवॉर्न कहते हैं कि सबसे पहली तो ये अनाड़ियों की फील्ड नहीं है। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर किसी ने इस काम में हाथ डालना है तो उसका स्पिरिचुअल लेवल, रूहानी लेवल बहुत हाई होना चाहिए। वो लिखते हुए ये भी कहते हैं कि ये नहीं कि आप जमाने भर का फैशन भी करें, बड़े जोर देते हैं इस बात पर, आप जमाने भर का फैशन भी करें तो आप बदरूहों को भी निकालें, ऐसा हो नहीं सकता। वो कहते हैं कि आपकी जो रूहानी जिंदगी है, जो जिस बात पर वो जोर देते हैं, वो कहते हैं कि वो नहायत ही स्टैंडर्ड पर होनी चाहिए, नहायत ऊपर। यानी कैसी जिंदगी वो कह रहे हैं, और उन्होंने प्रैक्टिकल से ये किताब लिखी, प्रैक्टिकल से वो बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं एक तो आपकी दुआया जिंदगी होनी चाहिए, दुआया जिंदगी, खासी दुआया जिंदगी। कलाम में आप टाइम गुजारते हो, आप दुनिया के गुनाहों से बचते हो, ये आपका एक स्टैंडर्ड जहां तक भी ले जा सकते हैं आप ले जाएं, और दुनिया की भीड़ में आप खो ना जाएं, यहां तक आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। और फिर वो इस बात को पेश करते हैं, वो कहते हैं कि अगर मसीह खुदावंद ने सबको ये ऑर्डर दिया था तो फिर जो मती 7 बाब 21 आयत में हम पढ़ते हैं, फिर वो बदरूह क्यों आगे से उन्हें उनके हुक्म से निकली क्यों नहीं है? जो मिर्गी का मरीज था या कब बढ़ता था, गिर जाता था, बदरूह उसे तोड़ मरोड़ के फेंक देती थी, तड़पता था, सब कुछ करता था। जी बेशक पढ़ दीजिए आप जी 17 बाब की 21 गाल मती, जो मुझसे ऐ खुदावंद कहते हैं। जी ये वाली नहीं, जी पढ़िए जी। लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह नहीं निकल सकती। जी शुक्रिया। अच्छा, जब वो ये बात करते हैं ना तो इस बात पर वो जोर देते हैं कि ये लिखा ही इसलिए गया है, ये किसी दूसरे तीसरे बंदे ने नहीं कहा। क्या हम कहें कि हम
फलां बंदे की सिर्फ एक आयत पर, एक बात पर पूरी डॉक्ट्रिन कायम कर ले, कैसे? ये मसीह का फरमान है। उन्होंने कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा निकल नहीं सकती। तो खुदा का खादिम एड वॉरेन कहता है कि उन्होंने असल में ये कहा था कि जो लोग बदरूहों के मैदान में काम करना चाहते हैं उनकी दुआया जिंदगी नहायत ज्यादा होनी चाहिए। कितनी? नहायत ज्यादा। और दुनियादारी में वो ज्यादा या बिल्कुल आलूदा ना हो। जैसे मैंने पहले भी कह दिया कि जमाने भर के फैशन, जमाने भर की दुनियादारी, जमाने भर की ऐशो इशरत और फिर बदरूहों को निकालना, ये तो आगे से तमाचे खाने वाली बात है। ठीक है। अब अगर मसीह ने ये बात कही तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि क्या उनका कोई ऐसा प्रैक्टिकल हमें नजर आता है? हम बरीक बीनी से जब देखते हैं तो मेरी बात को गौर से सुनिए। जब ही मसीह खुदावंद हीलिंग सर्विस करते थे उस वक्त फौरन बाद जाके वो दुआ में ठहर जाते थे, सारी रात। जब भी हीलिंग सर्विस करते थे सारी रात दुआ में गुजार देते थे। और आज का खादिम, आज का ईमानदार क्या करता है? जब हीलिंग सर्विस करता है तो होता क्या है? वो समझता है मुझे और मेरे खानदान को तो कोई चीज छू ही नहीं सकती, हम तो आजाद हैं। लेकिन तजर्बे से ये बताया गया है कि बहुत सारे खादमों को ऐसा भी हुआ है कि ये बदरूएं जो होती है ना, ये स्ट्राइक बैक करती है, जवाबी हमला करती है। जब आप इन्हें निकालते हैं ये जवाबी हमला करती हैं, पलटवार करती हैं। और बहुत सारे खादमों की जिंदगियों में मुशाहिदे से देखा जाए, जो लापरवाह खादिम, उनकी बात कर रहा हूं, वो कभी कभी तो उन्हीं बीमारियों में गिरफ्तार हो जाते हैं जिन बीमारियों से लोगों को आजाद करते हैं। आप मुशाहिदा करके देखिए, क्योंकि वो ये समझते हैं कि शायद मुझे और मेरे घराने को तो शैतान छू ही नहीं सकता। जरा गौर करें, शैतान ने पालूस के साथ भी टक्कर लेता रहा, शैतान ने दाऊद को भी बहका दिया, शैतान मसीह के सामने भी जाके छाती तान के खड़ा हो गया। तो आप फिर किस बात की मूली हैं? सिर्फ और सिर्फ मसीहा ही है जिसके फजल के सपूत आप रहते हैं, जिसके खून की बाढ़ अपने ऊपर लेते हैं और दुआ में टाइम गुजारते हैं, तब आप जाकर बचते हैं। मैंने तो यहां तक बता दिया कि आप स्टडी करें, जहां जहां भी हीलिंग सर्विस का काम हो रहा है उसके बाद मसीह प्रे में जाते हैं। तो आज का खादिम बदरूएं निकालता है, वो समझता है कि नहीं मुझे तो कोई कुछ नहीं कहने वाला। तो मैंने कहा ये जवाबी हमला करती हैं, ये जवाबी अटैक करती हैं, ये आपकी जिंदगी में उथल पुथल मचाएंगी, क्योंकि ये छोड़ने वाली नहीं होती, ये बदला लेती है। तो इनका मुकाबला करने के लिए खासी जरूरत है कि आपकी दुआया जिंदगी है। अगर आप इस मैदान में काम करते हैं एज ए ईमानदार, तो फिर आपकी दुआया जिंदगी होना बहुत जरूरी है। आलूदगी से बचे होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब उस बात पर मैं आता हूं कि बहुत सारे लोग यही प्रैक्टिस कर रहे थे और आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है या हमें क्या करना चाहिए, आज हम उस बात को सीख रहे हैं। इससे आगे भी बड़ी बातें हम सीखेंगे, लेकिन बहुत सारे उस वक्त भी प्रैक्टिस कर रहे थे। मेरे साथ जरा अमाल की किताब उसका 19 बाब 13 और 14 आयत जरा निकालिए। अमाल की किताब उसका 19 बाब 13 और 14 आयत हम पढ़ेंगे। मगर बाद यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये इख्तियार किया
कि जिनमें बुरी रूहें हो उन पर खुदा यीशु का नाम ये कहकर फूंके कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। एक सेकंड रुकिए। बाद यहूदी जो झाड़ फूंक करते थे, उन्होंने ये इख्तियार किया, अपना पैंतरा बदल दिया, तरीका बदला। उन्होंने कहा कि क्यों ना हो यार, यीशु मसीह के नाम से सारी बदबूएं भाग जाती हैं। हम इर्द गिर्द आगे पीछे जिधर भी देखते हैं लोग हुक्म दे रहे हैं कि यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ, और वो निकलती हैं। बाद यहूदियों ने जो झाड़ फूंक करते थे, उन्होंने तरीका बदला, ये तरीका इख्तियार किया कि हम यीशु मसीह के नाम से बदरूहों को निकालें। और आगे होता क्या है जी, कि जिस यीशु की पौलुस मुनादी करता है, मैं तुमको उसी की कसम देता हूँ। और सिकवा यहूदी सरदार काहिन के अब रुके, सिकवा यहूदी सरदार काहिन है जनाब। और काहिनों के आप दस्तूर जानते हैं कैसे होते थे? नहायत पाकीज़ा जिंदगी बसर करने वाले। सिकवा काहिन के जुड़े हुए या उसके बेटे हैं। सिकवा सरदार काहिन जो उस वक्त का था, उसके बेटे बताया जी, तो बेटे हैं उसके, लेकिन मजबूर है कि यीशु के नाम से ही बदरूहें निकल सकती है, उसके नाम से हम निकालें। और आगे से होता तमाशा क्या होता है, बदरू को हुक्म दिया जाता है और बदरू आगे से क्या कहती है कि पालूस को तो मैं जानती हूँ, अरे यीशु मसीह को भी मैं जानती हूँ, तो जनाब किबला आप कौन हैं? पढ़ दीजिए। बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा, जब उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, तो बुरी रूह ने आगे से क्या कहा? यीशु को तो मैं जानती हूँ, यीशु मसीह को तो मैं जानती हूँ, और पौलुस से भी वाकिफ हूँ, मैं वाकिफ हूँ, मगर तुम कौन हो? और आगे लिखा है, अगर पढ़े तो उनके बदरूए उन पर टूट पड़ी और उन्हें नंगा करके भेजा, नंगा कर दिया, मारा पीटा, कपड़े उतारे, नंगा करके भगा दिया। और आप मुझे अब अपना फैसला जरा बताएं, अपना ओपिनियन बताएं। इसका मतलब है जो स्टैंडर्ड मुकर्रर किया गया उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है, और वो वही बात है जो मसीह ने फरमाई थी। क्योंकि अगर आम आदमी जो स्पिरिचुअल नहीं है, जो मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं कबूल करता, या जिसकी रूहानी जिंदगी बेहतर नहीं है, या जिसका रूहानी लेवल अच्छा नहीं है, वो बदरू को हाथ नहीं उस पर डाल सकता या उसे नहीं निकाल सकता। क्योंकि ये भी तो वही काम करते हैं यार, इन पर आपको क्या इतराज है? ये भी तो यीशु मसीह के नाम से निकाल रहे, कोई दूसरा नाम इन्होंने लिया ही नहीं, बल्कि इन्होंने तो तरीका ही इख्तियार किया। पहला तरीका बदल दिया झाड़ फूक का, इन्होंने कहा ये अब जो ट्रेंड चल रहा है, ये चल रहा है, हम ऐसे ही करेंगे। इन्होंने यीशु मसीह के नाम से हुक्म देना शुरू किया, और बदरू भी अगे कोई 200-400 डंड लाने वाली सी, तगड़ी बदरू सी। उन्हें कहा जवाना हाँ 10 जरा, यीशु मसीह ने तो मैं डांडी तरह जाननी है पहलवान जी, और पालूस को भी मैं जानती थी, जनाब तुसी कौन हो? मार मार के लौलवान भी किया, नंगे करके पिटाए। इसका मतलब है कि जब यीशु मसीह ने ये बात कही तो वाकई ही वो 110% सही है कि जिस बंदे ने बदरूहें निकालनी है या बदरूहों की फील्ड में रहकर काम करना है, उसका स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई होना चाहिए, बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए। और बदरू निकालने के बाद उसे लाजिम है कि वो जब हीलिंग सर्विस करता है जाके दुआ में ठहर जाए और अपने घर को, बाल बच्चों को सिक्योर कर। नहीं तो वो फिर होता है कि भाई वो जब वापस अटैक करती है या हमला करती है तो किसी को नुकसान देती है। इसीलिए मसीह खुदावंद ने ये फरमा दिया था कि ये जात जो है, ये नस्ल जो है, ये बगैर दुआ और रोजे के, मैं यहाँ ये बात आपको बता दूं, सिर्फ दुआ की बात नहीं हो रही, ये दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती, दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। तो एकदम से जाना, हुक्म देना, हाथ रख देना, इन चीजों पे आज हम सीख रहे हैं और सीखेंगे कि ऐसा हमें नहीं करना।
हमें रूल कुद्दस कब तहरीक देता है, रूल कुद्दस हमें कब कहता है, उसका इंतजार करें, नहीं तो उल्टा आप फंस जाएंगे। जुमा 3 दिन आपने थोड़ी बहुत बाइबल सुनानी सीखी तो आपने ये काम शुरू किया, आपको पता भी नहीं चलता, आपका पूरा घर जो है गिरफ्त में होता है और आप मुश्किल में फंसे होते हैं, क्योंकि आपको इस बात का तजर्बा ही नहीं कि मैंने किस तरह दफा करना है, किस तरह जाके मैं दुआ में ठहरना है, किस तरह मैंने रोजे भी रखने हैं और किस तरह की मेरी दुआया जिंदगी होनी चाहिए अगर मैं इस मैदान में हाथ डालता हूं तो। आगे निकल जाते हैं, थोड़ा और आगे सीखते हैं। मैं अब जरा और सेंसिटिव मामले पर आ रहा हूं, बड़े गौर से सीख लीजिएगा। पहला तिमोथियुस उसका 5 बाब 22 आयत पढ़ेंगे, जरा गौर से सीखिएगा। मैं हमेशा कहता हूं बेशक आप नोट्स तैयार करें, आप सुना सकें, किसी से बात कर सकें। किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और दूसरों के गुनाहों में शरीक ना होना, अपने आप को पाक रखना। किसी शख्स पर जल्द हाथ ना रखना और अपने आप को स्टैंडर्ड अपना पाकीज़गी का बहुत ऊपर रखना और दूसरों के गुनाह में भागीदार होना या उनके गुनाह में शामिल ना हो जाना कहीं। आप ये देखें कि ये बात कैसी बात है, या मुकद्दस पालूस ने ये बात क्यों कह दी। आज आप दुनिया भर में चले जाएं तो ना तो कलीसिया को तसल्ली है और ना पादरी को तसल्ली है कि जब तक मैं हाथ ना रखूं इन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचने वाला, और ना कलीसिया रुकन को तसल्ली है कि जब तक आप हाथ नहीं रखेंगे। ये जो बाबों वाला काम होता है ना, झाड़ फूक वाला, वो काम बना हुआ है कि भी आप हाथ रखें। वो भी कहता है हाथ रखना चाहिए या मैं हाथ रखवाऊं, वो कहते हैं रखें। ये झाड़ फूक वाला काम शुरू हो जाता है यहाँ से और पता भी नहीं चलता अंदर ही अंदर क्या हो रहा होता है और सारे का सारा बेड़ा गर्क करके रख देती है ये डीमंस। तो यहाँ फिर इसका क्या मुकद्दस पालूस रसूल ऐसे ही कह रहे हैं। आप बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, गौर करें ना इन बातों। वो कह रहे हैं जल्दबाजी में जल्दी से किसी पर हाथ ना रखना, अपने आप को पाक रखना, पाकीज़गी का स्टैंडर्ड बहुत बड़ा रखना और दूसरे के गुनाह में हिस्सेदार ना बन जाओ। आप मुझे ये बताएं कि अब वो सामने गुनाहगार है, बदरू गिरफ्ता है या जो भी है, तो आप यहां तो वो ये बताया जा रहा है कि आप, इसका मतलब है उसके गुनाह में या उसकी बुराई में शामिल हो रहे हैं उस पर हाथ रख के, क्योंकि वो कह रहे हैं उसके गुनाह में हिस्सेदार ना बन जाना, तो जल्द उस पर हाथ ना रखना। यहां एक बात मैं साफ करता चला जाऊं कि यहां जो बात बताई गई है कि आप हाथ रख सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत अच्छी है। दूसरा, अगर रूहुल कुद्स आपको तहरीक दे रहा है कि इस पर हाथ रखो, फिर ये नहीं कि आप मंडली पर लाइन लगा लें और किसी को फायदा हो ना हो, आपको शायद नुकसान ही हो जाए। यहां ये बात बताई जा रही है कि रूहुल कुद्स अगर तहरीक देता है आपको, रूहुल कुद्स कह रहा है कि इस पे हाथ रख, तो फिर आप ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज बड़े जोर से पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए कहा गया है, गुनाह में शामिल ना हो जाना, उसके गुनाह में। ये आगे चल के हम सीखेंगे कि ये क्या बात हुई। अब तिमोथियुस नौजवान शख्स है, तिमोथियुस खुदा में स्पेशल बुलाया गया नौजवान लड़का है, पावर में फुल है, रूह कुद्दस से भरा हुआ है, उस्ताद भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उस्ताद का तजर्बा ये कह रहा है, उस्ताद उसे मना कर रहा है कि हर किसी पर यूं ही हाथ नहीं रख देना और अपनी पाकीज़गी के स्टैंडर्ड को बढ़ा, इसे कायम रखना है और यूं ही किसी पर हाथ नहीं रख देना और ना किसी के पाप में भागीदार होना या हिस्सेदार होना या उसमें शामिल होना। यहां से आप क्या लेते हैं? इसका मतलब है हाथ रखने से कुछ ना कुछ तो होता है, हाथ रखने से कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मनफी या मुस्बत में। इसमें तो बाद में बात कर लेते हैं, आप जो भी देखेंगे आप समझेंगे सुनेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ हाथ रखने में गड़बड़ तो है। जो लिख दिया गया कि तुम
हर किसी पे यूं ही हाथ ना रख देना, और अपनी पाकीज़गी को भी बरकरार रखना, और उसके गुनाह में हिस्सेदार ना बन जाना। ये बड़ी मतलब सोच तलब बात है। लम्हा फिक्रिया जिसे मैं कहता हूं, ये वो है कि क्या हाथ रखने से भी कुछ हो जाता है? अगर हो जाता है तो ये मुकद्दस पालूस का फिर बहुत बड़ा एक तजर्बा है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ नहीं है तो फिर तो नंगे भी भागते हुए आप देखते हैं। और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने देखा है, लोगों को सुना भी है कि फलां जगह मदरुए भाजी कटन गए तो मदरू अगो गल पै गई। तो ये फिर अगर आपकी स्पिरिचुअल लाइफ ठीक नहीं है तो फिर ऐसा होगा। अगर ठीक है तो फिर आपको वो भी करना पड़ेगा जो मसीह खुदावंद करते थे बशरियत की हालत में, कि वो जब हीलिंग सर्विस करते थे तो पूरी पूरी रात दुआ में गुजारते थे। हमारी दुआया जिंदगी तो होती नहीं, कलाम की जिंदगी तो होती नहीं। हम क्या करते हैं, थोड़ी बहुत बाइबल सीखी तो हम हाथ डालते हैं, उल्टा नुकसान। तो यहाँ हाथ डालने और हाथ रखने से भी मना किया गया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब जरा हम ना एक कदम आगे आ गए हैं, जहां से सीख रहे थे हाथ पर आ गए। अब हाथ की जरा बात करेंगे। अहवाल की किताब उसका 24 बाब 10 से 14 तक पढ़ेंगे। शरीयत की किताब अहवाल उसका 24 बाब 10 से 14 तक पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो, नहीं तो मैं बता देता हूं, जैसे आप अगर निकाल लिया तो पढ़ दें। यहां हमें एक आदमी नजर आता है, जी पढ़ दीजिए। और एक इस्राएली औरत का बेटा जिसका बाप मिस्री था, औरत का नाम सोलोमियत या इस तरह का नाम सोलोमियत था। ठीक है, ये मिस्री बाप का बेटा यहाँ इन आयतों में बताया गया है। और ये क्या काम करता है? सबत के दिन खुदा पर बुरा भला बोलता। मैं लानत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, खुदा के खिलाफ बुरा बोलता है। या खुदा के खिलाफ बुरा बोलता है तो लोगों को सुनाई भी देता है। लोग उसे मुकद्दस मूसा के पास ले जाते हैं, कस्टडी में रखा जाता है। मुकद्दस मूसा एकदम से फैसला नहीं दे देते, वो खुदा से पूछते हैं कि जनाब ये इसका गुनाह है, इसने ये काम किया है, तो फिर हम क्या करें? तो खुदा का जो फरमान या फैसला आता है वो ये है कि आप इसे बाहर ले जाएं, और जितने लोगों ने इसे ये कहते सुना है वो सब इस पर हाथ रखें। अब हाथ की जब बात आ रही तो मैं हाथ की स्टडी पर भी बात कर रहा हूं। सब इस पर हाथ रखें। पीछे पौलुस ने कहा हाथ नहीं रखने, यहां ये कहा गया कि सब इस पर हाथ रखें और इसे संसार कर दे, पत्थर मार मार के मार दे। और आगे क्या लिखा है? इसका गुनाह जो है इसी के सर लगेगा। यहां हमारी स्टडी खत्म नहीं हो जाती, ना हम सेटिस्फाइड हैं कि हमने हाथ रखने पर सीख लिया है, आगे चलेंगे हम। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब हम हाथ रखते हैं तो ये गवाही हम देते हैं कि ये गुनाहगार है। जब हम हाथ रखते हैं तो ये गवाही हमारी तरफ से होती है कि ये रास्तबाज है। अब उसने अपने अमल का हिस्सा आपके वसीला से लेना है कि वो किस कैटेगरी में आता है। अगर वो वाकई तौबा ही नहीं करता, गुनाह में जिंदगी बसर कर रहा है, तो हाथ रखने से वो हलाकत की तरफ जाएगा। हाथ रखने से वो बरकत की तरफ भी आ सकता है अगर वो तौबा करता है और रास्तबाजी की जिंदगी गुजारना चाहता है। अगर वो वाकई ही गुनाह में ही जिंदगी बसर करना चाहता है तो फिर आपके हाथ रखने से आप उसके गुनाह में हिस्सेदार बन जाते हैं, क्योंकि वो तो टस से बस होना ही नहीं चाहता। वो तो चाहता ही नहीं मैं इस जंगल से बाहर आऊं। वो तो वैसे ही आपको कह रहा है, उसे प्रॉब्लम है, बस कह रहा है पापा ये सब दुआ कर दो। ना वो खुदा का है, ना वो खुदा के पास आना चाह रहा है। तो फिर मुकद्दस पौलुस ने इसलिए ये बात कही कि ऐसे ही हाथ ना रख देना, क्योंकि हाथ रखने से एक गवाही पैदा होती है। गवाही क्या है?
ہاں یا نہ، زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے، کیا چاہتا ہے؟ کیا تجھے چاہیے؟ قبولیت بھی ہے اور راہ فرار بھی ہے، قبولیت بھی ہے، راہ فرار بھی ہے۔ راہ فرار میں موت ہے، قبولیت کے اندر زندگی ہے۔ تو یہ واضح یہاں کیا گیا کہ ایسے ہی ہاتھ نہ رکھ دینا، کیونکہ ہاتھ رکھنے سے بڑی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ اگر روح القدس کہتا ہے تو مقدس پالوس یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں پھر ہاتھ رکھنا، ادروائز یوں ہی نہیں کہ آپ ہاتھ رکھ دیں۔ ہاتھ آپ کہیں گے ہاتھ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کا ہاتھ آپ کو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے۔ خدا کا ہاتھ آپ کو برکت بھی دیتا ہے اور لعنت کے نیچے بھی لاتا ہے، تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اور وسیلہ کسے بناتا ہے؟ آپ کے ہاتھوں۔ وسیلہ کسے بناتا ہے؟ آپ کے ہاتھوں۔ کسی پر آپ دعا کرتے ہیں وہ پہلے سے زیادہ بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا کی طرف آنا نہیں چاہتا، توبہ کرنا نہیں چاہتا۔ آپ تو بھلے ہی دعا کر کے یہ کر کے وہ کر کے چھوٹ کے بچ کے نکل گئے، وہ پہلے سے زیادہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ کسی پر آپ جب ہاتھ رکھتے ہیں گواہی ہوتی ہے، وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے، وہ ہیل ہو جاتا ہے۔ تو ہاتھ خدا کا برکات بھی دیتا ہے اور پستی میں بھی لاتا ہے، لعنت بھی دیتا ہے اور برکت بھی دیتا ہے۔ آپ نے شریعت میں یا استثناء میں یا جگہ جگہ یہ بات پڑھی ہوگی کہ خدا کا ہاتھ ان کے پیچھے پڑا رہا جب تک انہیں ہلاک نہ کر دے۔ وہ بنی اسرائیل کے پیچھے 40 سال کے اوپر، جو 40 سال سے اوپر کے لوگ تھے یا 20 سال کے اوپر کے لوگ تھے، یعنی جو عمر سیدھا لوگ تھے جنہوں نے خدا کے خلاف بغاوت کی تھی، جو خدا کے خلاف کفر بکتے تھے، جو خدا کے خلاف باغی ہو چکے تھے، لکھا ہے کہ جب تک انہیں ختم نہ کر دیا خدا کا ہاتھ ان کے پیچھے پڑا رہا۔ تو میں یہاں ہاتھ کی جب بات کر رہا ہوں، میں نے کہاں سے شروع کیا اور کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو، ہاتھ کی بات کر رہا ہوں جب، تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ خدا کا ہاتھ برکت بھی دیتا ہے، لعنت بھی دیتا ہے۔ اور برکت کے لیے بھی لکھا ہے کہ پھر خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا۔ تو اگر آپ اس سے آگے بھی پڑھنا چاہیں تو میں آپ کو ریفرنس دے سکتا ہوں، ہاتھ کی لعنت اور برکت کے بارے میں، دکھ اور سکھ کے بارے میں، خوشی اور غم کے بارے میں۔ ایوب 2 باب 10 آیت دیکھ لیں ذرا جی جلدی سے۔ ایوب 2 باب 10 آیت، زبور سے پیچھے۔ اور اس نے اسے کہا کہ تو نادان عورتوں مقدس ایوب کہہ رہا ہے تو نادان عورتوں کی سی باتیں کرتی ہے، کیا ہم خدا کے ہاتھ سے سوکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ ہاتھ سے کیا خدا کے ہاتھ سے ہم سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں؟ تو یہاں ہم فائنل کر لیتے اس بات کا کہ اس کا ہاتھ دکھ بھی دیتا ہے، سکھ بھی دیتا ہے، آپ کو خوشی بھی ملتی ہے، غم بھی ملتا ہے۔ آپ باغی ہوں تو آپ تباہ و برباد بھی ہوتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ جڑے رہے تو باعث برکت بھی ہوتے ہیں۔ یہ ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، ایسے ہی نہیں کیوں کہہ دیا؟ خدا خود بھی ایسے بھی کہہ سکتا تھا کہ جاؤ جناب انہوں باہر لے جاؤ تے جا کے سنسار کر دو، گل ختم ہو جائے۔ ہاتھ کیوں رکھو؟ اس کا مطلب ہے ہاتھ میں ایک خاص چیز ہے، ہاتھ میں ایک خدا کی خاص برکت اور لعنت موجود ہے۔ چلے ایسا بھی نہیں تو پھر یہ کیوں کہہ دیا کہ جس گھر میں جاؤ اس کی سلامتی چاہو؟ اگر کوئی وہاں سلامتی کا فرزند ہے تو سلامتی وہاں ٹھہرے گی، نہیں تو وہ سلامتی لوٹ کر واپس تمہارے پاس آ جائے۔ کیوں؟ پادری تو سلامتی دے رہا ہے، سلامتی جا ہی نہیں رہی۔ پادری تو ہیل کرنا چاہ رہا ہے، ہیل ہو ہی نہیں رہا کیسے بندہ۔ پادری تو بدرو نکالنا چاہ رہا ہے، وہ بدرو نکلنے دیتا ہی نہیں وہ بندہ۔ یہاں کیوں پھر لکھا؟ میں آپ کو ریفرنس بھی ابھی دے دیتا ہوں جی، یہ ریفرنس ویسے ہے، ایک سیکنڈ لی جی، متی 10 باب اس کی 14 آیت ہے، اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیجیے۔ یا لکھا ہے جس گھر میں جو اس کی سلامتی کا، اگر کوئی وہاں سلامتی کا فرزند ہے، یار یہ کتنی مطلب خطرناک سی بات نہیں لکھی کہ اتنے اگر واقعی خدا دے لوگ نے کہ اسی تے ایویں دعا کرائی جا رہے ہیں
मतलब हुन असी काम सारे शैतान वाले करने, दुआ भी करवाई जा रही। देखिए अगर कोई वहां खुदा का फर्जंद है तो ये सलामती उस पर ठहरेगी, अदरवाइज ये सलामती वापस आ जाए। और घर में दाखिल होते वक्त उसे दुआए खैर देना, हाँ जी, और अगर वो घर लायक हो तो तुम्हारा सलाम उसे पहुंचे, सलामती पहुंचेगी। और अगर लायक ना हो तो तुम्हारा सलाम तुम पर फिर आए। तेरी बरकत फिर तेरे को रह जाएगी, चाह रखन तो प्रेज कर। ये इसीलिए लिखी गई, ये इसीलिए लिखी गई कि मर्दे खुदा जो लोग हैं या ईमानदार लोग जो हैं वो बेहतर बन सके, बेहतर स्टडी ले सके, बेहतर समझ सके। ये नहीं कि जाके दो चीज़ां आप चमेड़ के लैन उल्टियां, बाद जो भी पता लगे जी पादी साहब कल दे कंधा टकरा आप मारन लैन, पता नहीं की हो गया। ये बहुत जरूरी है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो और आप यहाँ से भी कॉन्शियस हों, यहाँ से कॉन्शियस हों कि क्या करना है, बाइबल क्या इजाजत देती है, बाइबल के कवानीन क्या इजाजत देते हैं। आप किसी भी बदलू को नहीं निकाल सकते जब तक आप मसीह के कवानीन को ठीक से फॉलो नहीं करते। मसीह के कवानीन को ठीक से फॉलो नहीं करते, किसी को भी नहीं, छोटी से को भी नहीं निकालेंगे। जब ठीक से फॉलो करेंगे, जिस तरह उन्होंने बताया है कि दुआया जिंदगी हो, रोजे वाली जिंदगी हो, और बेऐब से मतलब कि आप दीदा दानिस्ता गुनाह ना करते हो, तो फिर ये ठीक है। अगर ये चीजें नहीं है तो फिर आपने, जिन्होंने कहते हैं ना पंजाबी च अपने गाली खोनी, तो आप वैसे भी किसी के लिए सलामती चाहे, दुआए खैर चाहे, तो वो दुआए खैर उसे लगेगी ही नहीं। आप कहते हैं मैं बड़िया दुआवां कराइयां यार, साढ़े घर इन्ने ने पादरी आंदे सारा दिन बैठे रहंदे आ, मैं बड़िया दुआवां कराइयां करते ही रहते ने हर वेले, लेकिन एक दुआ भी असर नहीं करती, जिंदगी बदली नहीं, जिंदगी में इनकलाब नहीं है। तो इसका मतलब है दुआ वापस चली जाती है, सलामती वापस चली जाती है बाइबल के मुताबिक। अगर आप मसीह की तालीम के मुताबिक ये करेंगे तो फिर आप बदलूगे निकाल सकते हैं, और वो मैंने बताया कि बहुत ही हाई स्टैंडर्ड आपको चाहिए। अच्छा, जब हाथ की बात कर रहे हैं तो मुकद्दस अय्यूब ने ये बात बिल्कुल हम पर वाज़िया कर दी। तो दीगर ऐसे लोग हैं जो इसी तरह से अपनी नादानी की वजह से मार खाते रहे। अमाल 13 बाब उसकी 11 आयत जरा पढ़िए, अमाल 13 बाब उसकी 11 को जरा पढ़ दीजिए जी। जी पढ़े। अब देख, तुझ पर खुदावन का गजब है और तू अंधा होकर कुछ मुद्दत तक सूरज को न देखेगा। ठीक है, अब यहाँ क्या वाक़या है, ये अलमास जादूगर का वाक़या है। वहां जो मिलिट्री ऑफिसर है वो खुदा का कलाम सुनना चाहता है मुकद्दस पालूस से, ऐसे ही। अच्छा, और ये अलमास जादूगर जो है ये अपना ड्रामा कर रहा है कि किसी ना किसी तरह हो ना हो इसकी जिंदगी बचना चाहे। और जब ये टेढ़ी चाल चलते हुए मुकद्दस पालूस ने देखा तो उसे डांट दिया, और वो बंदा, आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ। तो बहुत ये वो भी ये बंदा है जो खुदा की बख्शिश को पैसों से खरीदना चाहता था, ये वो वाला बंदा है, और ये अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को ठीक नहीं करना चाहता था, तौबा करके बहाल नहीं होना चाहता था, माफी नहीं मांगने के लिए था कि भी मैं उस मसीह को जानूं जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है, बल्कि अपने किए फार्मूले के तहत ये सब कुछ करना चाहता था। और जब मुकद्दस पालूस ने देखा तो डांट दिया और कलाम क्या बताता, अंधा हो गया। इस तरह आपने सरदार काहे, यार छोटी बात नहीं है, मैं तो हैरान हो रहा हूं, सरदार काहे के बेटों ने तरीका बदला हुआ कि मसीह के नाम से निकालते, तो वो भी बुरी तरह फेल हुए, ये भी बुरी तरह फेल हुआ। तो इसका मतलब जो स्टैंडर्ड खड़ा किया गया कि मसीह के नाम से बदलू को निकालो, वो काफी नहीं है, वो बहुत बड़ा है, उसके नाम से ही निकलेंगी, लेकिन उसके साथ क्या है। और हर दफा आपको केस डिफरेंट मिलेंगे, मुख्तलिफ मिलेंगे, लेकिन फिर जरूरी क्या है कि आपकी दुआया जिंदगी, रोजे वाली जिंदगी और कलाम की जिंदगी होनी चाहिए। यानी स्पिरिचुअल लाइफ जो है, रूहानी जिंदगी जो है, वो खासी बाबरकत होनी चाहिए। क्या आप छाती पर हाथ मार के कह सके कि मैं खुदा का बंदा हूं। अच्छा, अब जब हाथ की हम बात कर रहे हैं
तो फिर ज़बूर 37 की 24 पढ़ते हैं कि वाकई हाथ में करामात है, हाथ में करामात है। या तो आपको बरकत मिल जाएगी या लानत ले लेंगे आपको, या आप ठीक हो जाएंगे या पहले से बदतर होना शुरू हो जाएंगे। अगर पहले से बदतर हैं तो इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में गड़बड़ है, फौरन चाहिए कि आप ठीक कर लें। अगर वो गिर भी जाए तो बड़ा ना रहेगा, क्योंकि खुदावंद उसे अपने हाथ से संभालता है। खुदा का हाथ हमें संभालता भी है, खुदा का हाथ हमें संभालता भी है, और इसके ऑपोजिट क्या कहेंगे, खुदा का हाथ फिर गिराता भी है। तो हाथ में ये करामात है, और खुदा का हाथ ही आपके हाथ पर होता है जब आप हाथ रखते हैं। इसीलिए वहां पुराने अहदनामे में हमने देखा कि हाथ रखने से क्या होता है, और नए अहदनामे में मुहताज किया गया कि यूं ही किसी पर हाथ ना रख देना। अगर रूल कुछ कहे, तुम्हें तहरीक दे और तुम्हारी दुआया जिंदगी अच्छी हो, तो फिर ये जुर्रत करना, अदरवाइज ये काम ना करो। अच्छा, अब हाथ की भी बात कर रहे हैं, तो रूत 1:13 आयत जब पढ़े तो फिर भी यहाँ नियोमी यही बात कहती है। रूत 1 उसकी 13 आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो नियोमी सेम यही बात कर रही है खुदा के हाथ की। जी पढ़ दीजिए, या यूं से पीछे जाइएगा तो मिल जाएगा। जी जी, सैमुअल से भी पीछे। तो भी क्या तुम ने उनके बड़े होने तक इंतजार किया? अब जब सारा कुछ फना फिल्ला हो गया, लड़के मर गए, शौहर जाता रहा, तो बहुएं जो थी वो 2 थी, और अब छोटे लड़के थे उसके पास, तो अगर वो थे नहीं, मतलब मिसाल दे के कह रही है कि अगर अब तो मैं इस काबिल भी नहीं हूं, तुम्हारे शौहर तो फौत हो गए, अगर मैं इस काबिल भी होती कि औलाद जन सकती तो क्या आप उनका इंतजार करते, आप तो बहुत बुढ़िया हो जाती। तो मेरी बेटियों आप जाओ, और जो जिस बात पर वो जोर दे के कहती है वो क्या है, ये हाथ, इसलिए कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। क्योंकि ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है। और जब मैं समझता हूँ उसने इस बात को समझ लिया, उसके बाद बरकत के दरवाजे उसके लिए खुलते हैं। उसने समझ लिया कि उसका हाथ मुझ पर गालिब है और बढ़ा हुआ है, मैं इससे बच सकती हूँ अगर मैं तौबा करूँ। और फिर उसकी जो बहू थी रूत वो उसके साथ जुड़ती है। लेकिन स्पेसिफिक बात जो हम कर रहे हैं कि उसने ये वादिया किया कि खुदावंद का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है, अदरवाइज ये सारा हादसा मुझ पर गुजरता ही क्यों। बाकी भी तो सारी दुनिया जी रही है, खुशो खुरम है, मेरे साथ ऐसा वाकया क्यों हुआ? तो खुदा का हाथ मेरे खिलाफ बढ़ा हुआ है, उठा हुआ है। तो हाथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। हाथ का ये कमाल है, अगर आप वाकई अपने कामों से तौबा नहीं करते तो जितनी मर्जी दुआएं कराएं, हाथ बढ़ाएं, जो मर्जी करें, आप पहले से ज्यादा मुसीबत में गिरफ्तार। अगर आप क्लियर हैं तो फिर बरकत ही बरकत शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने बहुत सारे रेफरेंस इसी बात के लिए दिए हैं। अब इसी मामले में पहला पत्रस उसका 5:6 में, फिर ये नए आयत में भी इसका तजर्बा था मुकद्दस पत्रस, इसीलिए इसने ये बात लिखी। पालूस को था, दाऊद को था, रूत को था, और पुराने आयतनामे में मुकद्दस मूसा को था। चले ये रेफरेंस तो निकालते हैं, हम पढ़ते हैं। मुझे ये बताएं इसमें क्या जादू है? बाबा मूसा जी हाथ उठाते हैं, जंग जीती जा रही है, हाथ थले आए तो जंग हारना शुरू हो जाता है। ये क्या है, जादू है? ये वही भेद है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये वाकया याद है? मुकद्दस मूसा हाथ उठाते हैं, जंग जीती, इवन के परेशानी का आलम ये बन जाता है कि वो हाथों के नीचे पत्थर रखते थे। बाबा जी के हाथ थक गए, बाबा जी कहते किड़ी मुसीबत च पाया, जो कहते नहीं जी तुम्हारे हाथ बहुत कीमती है, नीचे पत्थर रखते, जंग जीत लेते हैं। तो हाथों के अंदर ये बात स्पेसिफिक है, अगर वाकई आप खुदा के बंदे हैं। अच्छा, उसी रेफरेंस पे हम आते हैं। बस खुदा के नबी हाथ के नीचे फरोख्ती से अब मुकद्दस पत्रस के पास भी यही तजर्बा है, मूसा के पास भी
पालूस के पास भी, रूद के पास भी, यसाया के पास भी एक ही तजर्बा सबके पास है। और यहाँ क्या लिखा है, खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से, आजिजी से रह और वो वक्त पर तुम्हें सरबुलंद और सरफराज करेगा। सरबुलंद करेगा, बुलंदी बख्शेगा, सरफराज कर देगा। ये तजर्बा फिर बाबा पतरस के पास कहां से आया? वो उनके पास तो ये भी तजर्बा था कि बदरूए जनाब निकली नहीं। उन्हें तो ये कहा गया कि जनाब तुसी दुआ ते रोजे च ठहरिया करो। ये जिहड़ियां नस्लां ने, ये किस्मां ने, ये जात जिहड़ी है इंज नहीं निकलनी। दुआ ते रोजे दे पाबंद हो जाओ फिर निकलेगी। और मैं ये भी बताया कि जब मसीह ये काम कर देते तो सारी सारी रात दुआ में गुजारते थे। आज का खादिम ये काम नहीं करता, वो समझा मुझे किसी ने क्या कहना है, मुझे किसी ने क्या कहना है। और वो घर पे भी अटैक करते, बच्चों पे भी ये चीजें अटैक करती हैं। तो मुकद्दस पतरस के पास ये तजर्बा मौजूद था। तो मैं समझता हूं कि जो खुदा का बंदा है जिसकी किताब का मैंने जिक्र किया, उसने, इसका मतलब बहुत तजर्बे से ये चीजें लिखी। एड वॉरेन ने बहुत तजर्बे से ये छोटी छोटी चीजें बाइबल से ली, प्रैक्टिकल लाइफ में गया, सारी जिंदगी इस पर काम किया, फिर जाकर उन्होंने ये बातें कही या लिखी कि ये अनाड़ियों का खेल नहीं है। इस फील्ड में ये अनाड़ियों का खेल नहीं है। बाइबल को ठीक से पढ़े। अगर आप बदरूह के मैदान में या हीलिंग सर्विस में काम करते हैं तो फिर जरूरी है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो है बड़े पाए की हो। अच्छा, अब यसाया का बयान भी हम पढ़ लेते हैं। ये हाथ की तरफ से 59 बाब 59 उसकी पहली आयत। देखो खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया कि बचा ना सके। खुदावंद का हाथ छोटा नहीं हो गया, हालांकि हाथ आप ही का काम में आएगा। खुदा की सिर्फ ब्लेसिंग उस पर, आप लानत ले लें, बरकत ले लें, ये आपकी मर्जी है। खादम हमेशा चाहेगा कि आप बरकत लें, खादम हमेशा चाहेगा कि आप तौबा करें। अगर आप नहीं कर रहे तो आप अपने लिए मुसीबत इकट्ठी किए जा रहे हैं। आप अपनी राह से नहीं बाज आ रहे तो आप अपने लिए मुसीबत की इकट्ठी किए जा रहे हैं। पता नहीं वो किस दिन आपको नुकसान देगा। ये साया ने जब ये बयान दिया तो मतलब ये कोई छोटी बात नहीं, या आप ये कह लें कि ये साया कोई छोटा नबी नहीं है, बल्कि जितने नबी अकबर आते हैं, बड़े नबी हैं, उनमें इसका शुमार होता है। तो वो हाथ की बात कर रहा है, पांव की नहीं कर रहा, सर की तो कर रहा है, हाथ की कर रहा है, हाथ की, कि खुदा के हाथ में कुव्वत और कुदरत है और वही वो अपने खादमों के हाथ में रख देता है। बरकत किसने लेनी है, कैसे लेनी है, ये फार्मूला बाइबल के अंदर मौजूद। बोले वाली जिंदगी ना गुजारें, बिल्कुल बोली जिंदगी का क्या फायदा आपको मैच्योरिटी चाहिए अकॉर्डिंग टू बाइबल, बाइबल के मुताबिक। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया था कि आप जाके भी स्टडी कर सकते हैं। मत्ती 10:14 में कि जिस घर में जाते हो उसमें जाते वक्त उसकी सलामती चाहो। अगर कोई घर में सलामती का फर्जंद है तो सलामती जो है उसे मिल जाएगी। अगर नहीं है तो वो सलामती आपकी जेब, आपकी पॉकेट में फिर वापस आए। इसलिए ये जरूरी बात है कि अगर आप डीमन से या बदरूहों से जंग करते हैं या आप बतौर ईमानदार इस फील्ड में काम करते हैं या कभी करना पड़ता है, तो फिर बहुत ही जरूरी है कि अपनी स्पिरिचुअल जो लाइफ है उसे बेहतर से बेहतर रखे और हाथ यूं ही ना किसी पर रख दे। हाथ रखने से पहले रूह कुद्दस से तहरीक ले। मैंने अपने सीनियर से ये सीखा कि जब भी आप इस मामले में किसी के लिए जाते हो तो फिर आप क्या करो, पहले अपने आप को सेव करो, अपने पूरे घर को सेव करो, बच्चों को सेव करो, जो चीजें आपके साथ जुड़ी हैं उन्हें सेव करो, फिर खुदा से रहनुमाई लो और आगे बढ़ो, क्योंकि ये पलट वार करती है। और मसीह खुदावंद जब भी हीलिंग सर्विस करते थे वो दुआ में ठहरते थे, और आप भी रोजे और दुआ में पाबंदी करें। अगर आप ईमानदार हैं, आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को बेहतर करें। मतलब जमाने भर का सारे का सारा, जैसे मैंने कहा
کہ رنگ رلیاں جو کچھ آپ غلط ملت کریں پھر بھی آپ اپنے آپ کو ایماندار کہیں تو کہیں نہ کہیں پھر آپ پکڑے جائیں گے، جکڑے جائیں گے، نقصان اٹھائیں گے اور پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ نقصان ہو کیوں رہا ہے۔ دعا بھی میں کروائی جا رہے ہیں، وہ دعا ہی ہمارے لیے نقصان بن رہی ہے۔ کیوں؟ ہم ہاتھ کھلوا رہے ہوتے ہیں اور اپنے کام سے باز نہیں آ رہے۔ تو یہی بات مقدس پالوس نے کہی جب مسیح خداوند نے یہ آرڈر دیا کہ جاؤ میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، تو پھر ساتھ بڑی مضبوط بات کہی کہ یہ نسل، یہ بدروہوں کی نسل یہ دعا روزے کے بغیر نہیں جاتی۔ وہ ویسے نکالنا شروع ہو گئے تھے، دڑا دڑ، جس سے ہم کہتے ہیں تھوک پہ آئی جو دڑا دڑ تو ماڑی موٹی نکل گئی۔ تو پھر بتایا کہ یہ جو نسل ہے، یہ جو جات ہے، یہ روزے اور دعا کے بغیر نکلنے والی نہیں۔ تو بتایا یہ کہ روزے اور دعا میں زیادہ وقت گزارو۔ تو آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ ہم دعا اور روزے میں زیادہ وقت گزاریں اور کوشش کریں کہ آپ کا روحانی لیول جو ہے وہ بہت بڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ سو اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے اور ہمیشہ محتاط رہنے کا فضل دے۔